Okay, so very good evening, everyone. As we today all are gathered here to discuss on a very specific topic, which is on what? Gen Z and Gen Alpha. We will also discuss the psychological and practical tips as well as traits of them. What are the traits of Gen Z? What are the traits of Gen Alpha? Okay, so welcome in today's workshop session on the two of the most dynamic and influential generation of our time, which we already know. Sometime I think you also used to scroll the reels on the Instagram, right? They also used to see the Gen Z words like Gen Z slang, Gen Alpha slang. What is that? So today we will discuss whether you are an educator, parent, counselor, or leader. Understanding these generation will help you to connect, support, and guide them more efficiently. Because I think first of all, we all need to know the algorithm of that particular. Like if I consider the concept of coding, first of all, we need to consider about the algorithm of that particular program, that how the program is developing, that what are the time complexity of that particular program, right? So today's session, first of all, I would like to, before beginning this session, I would like to conduct a very small icebreaker, very small. Okay, so फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू आस्क दैट आज के स्टूडेंट जो ऐसे हैं ना, जो यूट्यूब से ज्यादा वीपीएन यूज करते हैं, राइट? वीपीएन यूज करते हैं, टिकटॉक देखते हैं यूट्यूब से ज्यादा। ठीक है, टिकटॉक कैसे देखते हैं? टिकटॉक तो वैलिड नहीं है, कैसे यूज करते हैं? वीपीएन के थ्रू एड्रेस चेंज कर देते हैं। व्हाट्सएप से ज्यादा डिस्कॉर्ड यूज करते हैं। डिस्कॉर्ड, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द डिस्कॉर्ड? आई थिंक एवरीवन। डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द डिस्कॉर्ड? Anyone know about the Discord application? Okay, doesn't matter. Actually, So may Discord. I? Yes, sure, sure. So No need basic, to ask so permission. basic, so basically, Discord application used for the group chats with voice, video, and text. Custom emojis they can make and share with each other. Screen sharing or live streaming also there. Okay, yes, exactly. So, ma'am, can Mhm. you tell me that how is it different from the WhatsApp? So in WhatsApp, we are still bounded with security levels, but here you cannot judge what other people to whom you are talking to. Yes, exactly. I Right. think, ma'am, there is Yeah. also a factor of live streaming also. Right. Live streaming is also there. So, ma'am, can you tell me that from which generation are you belonging? Gen Z or Gen Alpha? As you can also see on my PPT also. You can take the help. Mhm. Uh, so I am handling Gen Alpha. Gen Alpha. Okay, Yeah. good, ma'am. Okay. Thank you Okay. so much for your kind Yeah. cooperation. Thank you. Okay. Okay. So welcome to the part of Gen Z and Gen Alpha. Okay. अच्छा, कभी आप लोगों को ऐसा लगा? Raise your hands if you ever felt that your student are from another planet and you are belong from another planet altogether. उनको समझना मुश्किल लगा कभी? कभी आपको लगा हो? मैं नहीं कह रहा कि हमेशा आपको लगता है, अदरवाइज आप लोग टीचर नहीं होते। कभी लगा हो किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को या इवन किसी क्लास को, कहीं पे आपको जनरेशन गैप का इश्यू लगा हो किसी भी टाइम पे? आई एम आस्किंग फ्रॉम एवरीवन हियर। कभी भी आप लोगों को गैप का इश्यू लगाओ, कभी भी आप लोगों को लगाओ कि हाँ ये बच्चा थोड़ा अजीब है। हम लोग कहते हैं ना ये थोड़ा बच्चा है, किसी अगर कोई टीचर पूछता है ये बच्चा कैसा है या आपकी क्लास कैसी, तो हम लोग बताते हैं ना नहीं नहीं वो एक बच्चा है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर है, या वो एक बच्चा वो काफी ज्यादा नॉटी है। वी यूज टू डिस्कस समटाइम। आप लोगों को ऐसा फील ही नहीं हुआ? नहीं हुआ ऐसा फील? कभी भी नहीं? Okay, it doesn't matter. Let's move on. Okay. So first of all, I think we need to know that who are Gen Z and who are Gen Alpha. So as ma'am, Namita ma'am, yes, Namita ma'am has already told that which class do you used to handle. Okay, and it which manner scenario she used to handle. She used to see is that Gen Alpha. Okay, so Gen Z has born between the age group of 1997 to 2012. Okay, and if I consider as Gen Alpha, born between 2013 onwards. Okay, why this topic matter? So topic, I think first of all, before discussing anything, first of all we need to know that why we are discussing this topic. So these learners are digital natives,
विद यूनिक साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स। इन लोगों की प्रोफाइल एक्चुअली में क्या होती है, डिफरेंट होती है, एंड ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। आपका एज ग्रुप अलग है, मेरा अलग है, लोगों का अलग है, बच्चों का अलग है। तो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द व्हाट एल्गोरिथम, उनकी वर्किंग पता होनी चाहिए। भाई अगर मैंने बोला है कि किसी मोटर को अगर ऑन करिए, ठीक, तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसकी वर्किंग कैसी है, उसको कितनी देर तक के लिए आपको ऑन करना है, उसका स्विच कहाँ पे, ऑन एंड ऑफ बटन सेम है या डिफरेंट है, राइट। तो हमें पता होना चाहिए ना उसका एल्गोरिथम, उसकी वर्किंग, उसका कंस्ट्रक्शन हमें पता होना चाहिए। ठीक, ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स आर लेस एफिशिएंट या फिर इफेक्टिव हैं। ठीक, उनके लिए ट्रेडिशनल जो रहे हैं वो कम इफेक्टिव है, उनके लिए कैसे टीचिंग मेथड्स रिक्वायर्ड हैं, होलिस्टिक टीचिंग मेथड्स आर रिक्वायर्ड फॉर दी बोथ जनरेशन विच इज नोन एज एनजी एंड जेन अल्फा। ओके, व्हाट दिस प्रेजेंटेशन कवर्स: key psychological traits we will discuss as I earlier told to you, practical teaching strategies tailored to their needs, tips for engagement, motivation, classroom management. Because today's classroom is totally filled up with these both generations, Gen Z and Alpha. Like, okay, we can also take the definition of classroom. Classroom is a combination of both generations, which is known as the Gen Z and Gen Alpha. So first of all, we need to know that how to manage a classroom effectively. Okay, psychological traits of Gen Z and Gen Alpha. If I consider that both generation are very tech savvy but easily distracted, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है उनको। तो एक टेक सेवी तो है ही है, डिस्कॉर्ड यूज करते हैं व्हाट्सएप की जगह पे, वीपीएन यूज करके टिकटॉक जो कि वैलिड नहीं है तब भी यूज करते हैं, टेक सेवी इन्हें हम लोग रेफर करते हैं। ठीक, तुरंत फोन उठाया, चैट जीपीटी से आंसर देख लिया तुरंत। ठीक, तो समवेयर वी में रेफर टू दीज जनरेशन एज टेक सेवी। वैल्यू ऑथेंटिसिटी एंड रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, इन्हें रियल वर्ल्ड रेलेवेंस चाहिए। इन्हें हम लोग जैसे अब तक पढ़ते आते थे या कैसे भी करा है कि केवल पेन एंड पेपर से पढ़ाई हो गई एंड दैट्स ऑल, इन्हें बट प्रैक्टिकल चीजें चाहिए हैं। इन्हें प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग भी चाहिए, एनिमेशन भी चाहिए है। सपोज करिए अगर आपका प्रैक्टिकल हो रहा है फिजिक्स में, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो इन्हें उस चीज का एग्जाम्पल के साथ साथ रियल वर्ल्ड रेलेवेंस चाहिए कि एक्चुअली में इसका सिग्निफिकेंस इन द रियल वर्ल्ड क्या है। TRW, somewhere we used to refer. Okay, सोशली अवेयर एंड ओपन टू डाइवर्सिटी, कि काफी ज्यादा डाइवर्स रहते हैं, अवेयर रहते हैं। आप इनको कहते हैं ना, हम लोग एक सेंटेंस यूज करते हैं कि हम इन सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि हमें बेवकूफ बना देंगे लेकिन खुद नहीं। यूज करते हैं लोग सेंटेंस ऐसा, मैं नहीं कह रहा, बट लोग यूज करते हैं। तो क्यों करते हैं, उसका रीजन है। हम लोग कुछ भी देखिए बोलते हैं, देयर इज अ प्रोसेस ऑफ थॉट, थॉट प्रोसेस उसके पीछे मैटर करती है आपकी। सोशल अवेयर है, ठीक, और डाइवर्सिटी के लिए ओपन। प्रेफर विजुअल्स एंड इंटरेक्टिव लर्निंग। ओके, विजुअल्स मैंने अभी बताया कि उनको एनिमेटेड सारी चीजें चाहिए। अगर मैंने बात करी है कि जेनजिन जेन अल्फा क्या है, तो जैसे मैं आपको पीपीटी के थ्रू दिखा रहा हूँ, सारी चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वैसे उन्हें भी सारी चीजें विद रिफ्लेक्शन चाहिए। रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन इज नीडेड अकॉर्डिंग टू देयर आईज। ओके, नीड फ्रीक्वेंट फीडबैक एंड रिकॉग्निशन। अच्छा, रिकॉग्निशन क्यों जरूरी है, रिकॉग्निशन क्यों जरूरी है उनके लिए, ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनको कोई पहचाने, क्यों रिकॉग्नाइज करे उन्हें, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो जाता है कि वो रिकॉग्निशन उनको नीडेड हो गया। उनको रिकॉग्निशन क्यों चाहिए क्लासरूम में, मोस्ट ऑफ द टीचर्स। So यस, children needs recognition just to boost up their own motivation in the class, and they feel confident among peer group, so they can, एग्जैक्टली, yeah, they can move ahead or encourage a positive behavior. exactly. Most of the teachers, as I can observe, that they are sending, message in the chat. Try to interact. Okay, not in the chat. Try to interact. We may say that in the real. आप लोग भी जेनजी की तरह ट्राई करिए ना, जेनजी एंड जेन अल्फा वाली पूरी चीजें अप्लाई करिए। आप लोग भी ऐसे क्यों कर रहे हैं भाई, जब आपके स्टूडेंट्स ऐसे हैं देन आपको भी वैसे ही बनना चाहिए ना। आप भी क्यों चैट में कर रहे हैं, आप भी रियल उसमें वॉइस में आइए ना, रियल फॉर्म में जिसे हम लोग बोलते हैं। ओके, ओके नमिता मैम, थैंक यू सो मच। ठीक, कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन आपने, मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू बताना चाहूंगा, इजिली उससे समझ में आया। कहते हैं ना डेफिनेशन उनको नहीं चाहिए, तो जब उन्हें नहीं चाहिए तो मुझे नहीं लगता मुझे भी बहुत उससे बतानी चाहिए डेफिनेशन क्या है रिकॉग्निशन की। नो, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा जब आप किसी बच्चे की प्रेज करते हो, तारीफ करते हो, देन क्या होता है वहां पे,
बच्चा खुश हो जाता था। क्या कहीं ना कहीं वो आप देख रहे हो ना, रिलेशन क्या बना है आपका, रिकॉग्निशन, आपने उस बच्चे को पहचान दी। आपने उसे क्लास में क्या हुआ, आपने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि ये बच्चे की राइटिंग सबसे सुंदर है, हैंड राइटिंग डिफरेंट है फ्रॉम अदर्स। तो क्या हुआ, रिकॉग्निशन कहीं ना कहीं से मिला। रिकॉग्निशन पे क्या, उसे मोटिवेशन मिला, और देन क्या होता है, आपकी क्लास सक्सेसफुल क्लास कहलाती गई। तो एक प्रोसेस थी ना वहां पे, ये चीज थी। एंजाइटी एंड स्ट्रेस प्रोन में अगर हम उसे देखते हैं तो फेस एकेडमिक प्रेशर, ठीक, एकेडमिक प्रेशर फेस करते हैं। सोशल सोशल कंपैरिजन, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस कहीं ना कहीं होते हैं इनके सब में, मेंटल हेल्थ बहुत सारे होते हैं। अब एक हम लोगों ने आर्टिकल भी हम आज के इतने सारा पढ़ते हैं कि किस तरह सोशल मीडिया अफेक्ट कर रही है टीनेजर्स को, ठीक है, सोशल मीडिया किस तरह अफेक्ट कर रही है। सोशली कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्शियस, जैसे एक तरीके से हम लोग वर्ड सुनते हैं हेल्थ कॉन्शियस, लाइक दैट दे आर आल्सो सोशली कॉन्शियस। सेंसिटिव टू इश्यूज लाइक क्लाइमेट चेंज, हम लोग एक तरीके से ये भी वर्ड यूज करते हैं क्या, कि आजकल के बच्चे बड़े नाजुक हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं बताइए, आजकल के बच्चे Very true, sir. बहुत। यस मैम। Very true. Whatever you are saying, we generally tend to speak this sentence. आजकल के बच्चे बहुत sensitive है. बिल्कुल, आप उन्हें स्कूल में इंस्ट्रक्शंस कह रहे थे कि आप उनको एक स्लैप नहीं सही से लगा सकते, उनके पेरेंट्स आपको तुरंत कंप्लेंट कर देंगे, राइट। तो क्या है, हम लोग यूज करते, तो ऐसे ही हम लोग क्लाइमेट में देखते हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, लेट मी चेक द चैट सेक्शन ऑल्सो। यस, कनेक्शन फॉर्म, वेवर, रफ एंड टफ, यस यस, ओके, सो लाइक दिस, ओके। नाउ विजुअल लर्नर्स प्रेफर वीडियोस, ओके, वो मैंने अभी बताया था ना कि वो वीडियोस को प्रेफर करते हैं। इन्फोग्राफिक्स, इंटरेक्टिव मीडिया, हो सकता है मैंने पीपीटी ऐसी बनाई है, उनको और अच्छी चाहिए हो इंटरेक्टिव वाली, हो सकता है उन्हें वहां पे कॉर्नर्स पे क्या चाहिए हो, उन्हें विजुअल्स और चाहिए हो कॉर्नर्स पे, ग्राफिक्स और चाहिए हो कॉर्नर्स पे, ठीक है, तो लाइक दिस, ठीक। देन क्या होता है, ओवर टेक्स्ट से भी रहते हैं, हेवी फॉर्मेट्स को अप्लाई करते हैं, ठीक। अच्छा, क्रेव पर्सनलाइजेशन, एक्सपेक्ट टेलर्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड चॉइसेस इन हाउ दे लर्न। चॉइसेस इन्हें बहुत ज्यादा चाहिए रहती हैं। वो लोग अक्सर इस चीज की डिमांड करते हैं कि उनकी चॉइस से हर वक्त चला जाए, बट आपकी चॉइस से नहीं। तो इसका सोल्यूशन जानते हैं क्या है, इसका सोल्यूशन, एंजॉय देयर लाइफ टू द फुलेस्ट, यस। हाँ, अच्छा, उनका तो फिर जानते हैं क्या सोल्यूशन है, कि उनको चॉइसेस चाहिए। तो अब आप सोचोगे आप उन्हें हैंडल कैसे करोगे, कि उनकी अगर चॉइसेस से एक एक बच्चे की चलेंगे तो कैसे। मैं जो अप्लाई करता हूँ अपने रियल वर्ल्ड क्लासरूम में, मैं अपना थोड़ा सा यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं होमवर्क सेम दूंगा। सपोज करिए मैंने दिया है होमवर्क किसके ऊपर, वाटर साइकिल के ऊपर, ठीक, मैंने दिया है होमवर्क, और मैं नहीं जा रहा चेंज करने, ना मैं कहने जा रहा कि बच्चों को, मैं क्या कहते हैं, मैं टॉपिक चेंज कर लो। मैं नहीं कहने जा रहा कि स्टूडेंट्स को कि आप लोग टॉपिक चेंज करके अपनी मर्जी से करिए, या जिसकी मर्जी वो करे, जिसकी मर्जी वो ना करे। मैं नहीं, ऐसा ना कहने जा रहा, ना मैं आप लोगों को सलाह दे रहा हूँ, मैं सीधे बोल रहा। मैं क्या करता हूँ, टॉपिक मैं कहता हूँ सेम रखिए, बट करिए क्या, जिसको इंटरेस्ट है रियल वर्ड देखने का, भाई वो ठीक है मॉडल प्रिपेयर करके दिखाए। जिसको इंटरेस्ट है थ्योरी लिखने का, ठीक है, वो ऐसे आर्टिकल लिख के दिखाए। जिसको जैसे इंटरेस्ट, बट टॉपिक चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं मैं कर रहा हूं, क्यों नहीं मैं कर रहा हूं, इसलिए नहीं करना चाह रहा। मैं होमवर्क क्यों देता हूं, या होमवर्क आप लोग क्यों देते हैं, असाइनमेंट आप लोग क्यों देते हैं, नए रूल्स क्यों बनाते हैं, कॉज ऑफ वाई, to provide the knowledge of that particular topic, of that particular subject area। नॉलेज है मेरा मोटो। हम लोग टीचर्स हैं तो हम लोग ये सोच रहे हैं ना पहले, कि हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसका आउटकम हमें ला के दिखाना है। हमें ये नहीं कहना कि हमसे नोटबुक रेड पेन से चेक करवाओ ही करवाओ। ये फॉर्मल चीज है, मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि फॉर्मल चीज है कि यहाँ रेड पेन से चेक करवाओ, बट मेरा ओवरऑल मोटो, मेरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिटरमिन है। क्या है, कि मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि हाँ, बच्चे को जो मैं वॉट एवर आई एम गोइंग टू डिलीवर, ही और शी मस्ट अंडरस्टूड, उसे आना चाहिए, वो समझ जाए। एनी हाउ मुझे नहीं पता, साम दाम दंड भेद करके उसे ये चीज आ जाए कि हाँ ठीक है, वाटर साइकिल होती क्या है, कैसे प्रोसेस चल रही है। एंड आई थिंक जब वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रिपेयर करेंगे ना एक ही टॉपिक पे, तो मोर आइडियाज जनरेट होंगे। आपके आपके आइडियाज क्या होते हैं ना, और जनरेट होते हैं, है ना। वहां पे आपके सेम आइडिया, जब आप खुद ही सोचो, जब आप एक आइडिया देते हो कि थ्योरी लिख के ले आओ, या एक ही प्रोजेक्ट बना के ले आओ, तो क्या होगा, वही तो एक एक बच्चा लाएगा, कुछ उनमें से लाएंगे नहीं। क्यों, उनका वो फेवरेट टॉपिक नहीं था। या हो सकता है किसी बच्चे के पास में टाइम ड्यूरेशन की प्रॉब्लम आ गई हो सकता है किसी के पास में, आपने सपोज के प्रोजेक्ट दिया और उसके पास में टाइम, फैमिली में, और वो चला गया, और फंक्शन भी अटेंड करना नीडेड था,
ठीक। तो आप क्या सोचोगे, आपने तो ठीक है कहा कि तुम नहीं लाए बना कि तुम अटेंटिव नहीं हो सकता वो अटेंटिव था स्टडी के रिगार्डिंग, बट वो नहीं कर पाया। तो आप जब उन्हें चॉइसेस दोगे ना, हो सकता है आप उसे जब थ्योरी वाला आप उसे जब चॉइस देते तो हो सकता है शायद वो थ्योरी लिख के ले आता, सुबह उठ के भले लिखता, मॉर्निंग टाइम में लिखता, बट वो ले आ सकता था। बट मॉडल में जितना टाइम लगता वो नहीं कर सका। क्यों? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से। तो हम लोगों ने अगर सेम टॉपिक अकॉर्डिंग चॉइसेस प्रोवाइड करेंगे तो आई थिंक इट वुड बी बेटर। Okay, that is somewhere also refers to what? Effective teaching and learning process. Okay, okay, now come on next. Need instant feedback. Motivated by quick response and recognition. मैंने बताया ना, इनके लिए recognition and responses बहुत needed है। इनको आपका recognition, response बहुत needed है। आप सपोज करो नहीं बोल रहे हो उनसे, आप स्टूडेंट छोड़ दीजिए, टीचिंग छोड़ दीजिए, आप अपने घर में पहले देखिए। आपके अगर बच्चे हैं और अगर आप उनसे कुछ बोलते हो, ठीक है, आपने उनसे कुछ पूछ दिया, थोड़ी देर में आप किसी और से बात कर रहे हो अपनी फैमिली में, और बच्चा अगर आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है तो उनका आप कभी रिएक्शन ट्राई करिएगा, देखिएगा। एंड आई थिंक मैं होप करता हूँ सब ने इस चीज को ऑब्जर्व करा होगा। कुछ हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तब आप उन्हें मनाते हो कि अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक। इस तरीके से आप देखते होगे, आई थिंक रियल वर्ल्ड में डेली लाइफ में आप देखते होगे। ठीक है, कम ऑन द नेक्स्ट। साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ जेन अल्फा, वो किसके थे? आपके जेनजी के थे। ये किसके हैं? जेन अल्फा के हैं आपको। ठीक है, जेन अल्फा के हैं आपके साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। ठीक है, दस। हाँ, ये एआई की जनरेशन में बॉर्न हुए हैं, दोनों ही टेक से भी हैं, बट डिफरेंस है वो एआई की जनरेशन में बॉर्न नहीं हुए हैं। ठीक है, हाइपर डिजिटल लर्नर्स। ठीक, विजुअल प्लस गेमिफाइड लर्निंग। गेमिफाइड लर्निंग, एनीवन वुड लाइक टू टेल व्हाट इज समवेयर रिफर्स टू द गेमिफाइड लर्निंग? वॉट इज समवेयर रिफर्स टू द गेमिफाइड लर्निंग? डोंट वरी, आप लोग देखिए गलत बोलिए, मैं नहीं कहता किसी से कि बहुत ज्यादा सही बोलो, हो सकता है मैं भी कहीं कहीं पे रॉन्ग हूँ, बट आप लोगों का पार्टिसिपेशन नीडेड होता है। ठीक है, गलत बोलिए ना, क्या जरूरत है कि उसको बहुत ज्यादा सही बताने की, वरना अगर इतने सही होते तो फिर आप और हम भगवान हो जाते अगर इतने सही बताते होते एक दूसरे को। ठीक है, गलत ही बोलिए, मैं कहता हूँ बोलिए। So for me, gamified learning, what I used to do in the class, it is not related to the playing games, though it names looks like, but we used to give points or batches. So I made a one chart, star chart of the week in the class. So whosoever behaves good or whosoever writes good, I give a 5 stars or green stars, which is for the indicating good student of the class. So I keep on changing the labels and make the leaderboards also so that it makes the mission for everyone to be a good child in the class. I think एग्जैक्टली, so. It is my point of view. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। मैम ने देखिए बताया गेमिफाइड लर्निंग, मैम देखिए बैचेस वगैरह प्रोवाइड कराती हैं, लीडर बोर्ड्स मैम प्रिपेयर करती हैं। वाई? वाई? ओनली इन ऑर्डर टू एंगेज द स्टूडेंट्स इन हर टीचिंग। क्या मोटो है? मैंने अभी बताया कि हम सबका मोटो क्या है, ओवरऑल मोटो क्या है, कि हम जो कंटेंट डिलीवर करने जा रहे हैं एक एक बच्चे तक इफेक्टिवली डिलीवर हो जाना चाहिए। एक ही मोटो है, एक ही मोटो, चाहे हम बैचेस बना रहे हो, चाहे हम लीडर बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग, क्या मोटो है? केवल हमारा कंटेंट इफेक्टिवली डिलीवर हो जाए। ठीक, अच्छा। गेमिफाइड लर्निंग हमारी ये भी होती है कि कहीं ना कहीं जैसे लर्निंग बाई गेम्स, गेम्स आपके लेकिन वो वाले नहीं, आपके कहीं ना कहीं टेक वाले गेम्स जो जिनमें एजुकेशन प्रोवाइड हो रही हो, आपका कुछ कहते हैं ना सिग्निफिकेंस हो वहां पे, कुछ वैल्यूज ऐड ऑन, लाइक गूगल फॉर्म। हम लोग गूगल फॉर्म की हेल्प से गेमिफाइड लर्निंग करा सकते हैं। हमने ठीक है उन्हें एक फॉर्म दे दिया, बच्चे जब घर चले गए तो आप लोग चाहें ये ट्राई कर सकते हैं, गूगल फॉर्म आप लोग प्रिपेयर करिए और आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन एंड आंसर प्रिपेयर करिए, देन आप उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में, आपका जो भी है स्कूल ग्रुप, आप उसमें पोस्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे, जब आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, ठीक है, जब आजकल बच्चे इतने ज्यादा टेक से भी हैं ही, तो आप लोग भी उसी अकॉर्डिंग करो, अपने आप को प्रिपेयर करो उसी अकॉर्डिंग सेम वे में। मैं मानता हूं कि ठीक है वो एआई यूज करेंगे, मानता हूं कि वो एआई यूज करेंगे, और वहां पे वो क्या करेंगे, आंसर करेक्ट वाला बिल्कुल फिलअप करेंगे, लेकिन एट लीस्ट वो नजर तो डालेंगे ना पर्टिकुलर आंसर पे। डेफिनेटली आई थिंक ये वाली टेक्निक आप लोग यूज करिएगा और काम देगी, आपका लर्निंग आउटकम जो बच्चों का होगा ना और इंक्रीज होगा।
यूज करेंगे टू इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर्स। बट वहां पे क्या होगा, कुछ तो नजर जाएगी ना कि राइट आंसर ये है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज को यूज कर सकते हैं। इस सेकंड डेली जो भी आप लेसन पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, सब टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप उसका गूगल फॉर्म प्रिपेयर करके रखिए। देन आप सिंपली आप उसे स्कूल ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है इनका, ठीक है। इनका बहुत शॉर्ट अटेंशन स्पैन होता है। इनको अगर आपने 8 मिनट में, यानी कि 8 सेकंड में, सॉरी मिनट नहीं सेकंड, 8 सेकंड में अगर आपने इन्हें एंगेज करा टीचिंग में, टॉपिक में अगर इन्होंने इंटरेस्ट लिया तो लिया, अदरवाइज नहीं लेंगे। आप इनसे कितना कहो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ये है, ऐसा है, वैसा है, नहीं करेंगे। क्यूरियस एंड कॉन्फिडेंट रहते हैं। कॉन्फिडेंट तो इतना रहते हैं कि ओवर हो जाता है इनका। तभी तो कहते हैं आजकल हम लोग कि बस निकल गई हवा। एक सेंटेंस बहुत जनरली यूज करते हैं कि बस हाँ निकल गई हवा। ठीक, हम लोग अक्सर ये भी काम करते हैं, कोई नया काम करने चल रहे होते हैं तो बताते ही नहीं है आजकल की जनरेशन में किसी को। बताइए कितने लोग ऐसा करते हैं? भाई मैं तो करता हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, मैं करता हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। मैं ऐसे नहीं बताता, जब काम हो जाता तब बताता हूँ कि हाँ मेरी वर्कशॉप हो गई, देन बताऊंगा। कितने लोग ऐसा करते हैं? पहले से कहते हैं ना हम लोग कि पहले से नहीं बताना चाहिए, एक सिंपली एक हम लोग मिथ बना रखा है। बताइए, लेट मी चेक द चैट सेक्शन। हम्म, एग्जैक्टली। हाँ, कितने लोग ऐसा काम करते हैं? कॉन्फिडेंट तो हैं लेकिन फिर भी। अच्छा, कोई नहीं करता ऐसा। चलिए, वेरी गुड। ठीक। हार्ड पर्सनलाइजेशन डिमांड होती है इनकी। इनकी डिमांड्स तो बहुत ज्यादा होती हैं। हम लोग फिर वही वाली बात आती है, हम लोग फिर वही बोलते हैं आजकल बच्चों की डिमांड बहुत ज्यादा है। हम लोग अपनी जनरेशन से कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। लर्निंग थ्रू प्ले, कहीं ना कहीं समवेयर रिफर्स टू द गेमिफिकेशन, लेकिन गेमिफिकेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है। इमोशनली एक्सप्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस में खोए रहते हैं आपके। इन्हें सब कुछ कहना कि अगर मैं इस स्लाइड को कंक्लूड करना चाहूं तो इन्हें सब कुछ अभी और तुरंत चाहिए, ऑन द स्पॉट दे नीड। ठीक है। पेशेंस से काम नहीं लेना है, ठीक है। इन्हें अगर 8 सेकंड के अंदर इनका इंटरेस्ट नहीं बना टॉपिक या सब टॉपिक में, तो ये मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। वी मे ऑल्सो रिफर दैट दे डिस्ट्रैक्ट। ठीक। ये टेक्स्ट नहीं, वीडियोस विजुअल्स से ज्यादा सीखना पसंद करते हैं। इनको स्कोल्ड करने पर इमोशनली हर्ट हो जाता है, सेल्फ वर्थ पर असर पड़ता है उनकी नजरों में। ठीक है। हर काम के बाद दे यूज टू एक्सेप्ट एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन मैंने अभी बोला, रिकॉग्निशन की तरफ कहीं ना कहीं रेफर कर रहा है आपका। ठीक है। उनको एप्रिसिएशन रिकॉग्निशन बहुत ज्यादा चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ, प्लीज उन्हें रिकॉग्निशन की प्रॉपर्टी जरूर आप लोग फॉलो करिए, उनके साथ में अप्रिशिएट करिए। ठीक है। चलिए। अच्छा, डिफरेंस क्या है? मैंने अभी तक तो मैंने ये सब बोला कि हाँ ठीक है, वो भी डिजिटल है, वो भी डिजिटल है, तो डिफरेंस क्या हो गया? मैंने उन दोनों की बढ़ाई कर दी, यहाँ दोनों ही अच्छे थे दोनों। कहते नहीं, कॉमन डिफरेंस अभी तक नहीं आ रहा था निकल के। मैंने अभी तक बोला कि हाँ वो क्या कहते हैं, वो भी टेक है, वो भी टेक है। मैंने ऑलमोस्ट मैंने सिमिलरिटी की बात करी है। जैसे कहते हैं ना, एक डिफरेंस वो भी होता है कि कहते हैं वो अच्छा था, एक बुरा था। बहुत इजीली आप लोग डिटरमिन कर लेते हो डिफरेंस। बट यहाँ क्या है, मैं तो दोनों को टेक से भी बता रहा हूँ, दोनों को मैं कॉन्फिडेंट कहीं ना कहीं बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं। तो बहुत इसमें माइन्यूट से डिफरेंस है। इनका एज डिफरेंस पहले हम लोग देखते हैं 1997 से 2012 है जेनजी का। वहीं जेन अल्फा का हम लोग देखते हैं 2013 है। अब मुझे आप सभी लोग फटाफट से क्विक रेस्पॉन्स दीजिए इन द चैट सेक्शन, हाउ मेनी ऑफ यू बिलोंग फ्रॉम जेनजी एंड जेन अल्फा? जेन अल्फा वाले बहुत ही कम होंगे, बल्कि आई थिंक होंगे नहीं, ऑलमोस्ट जेनजी होंगे यहाँ पे। बताइए, चलिए चैट सेक्शन में स्टार्ट हो जाइए। जेनजी और जेन अल्फा, फटाफट से स्टार्ट हो जाइए चैट सेक्शन में। एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you're audible. As you have asked the question, I do deal with Gen Alpha, but I don't belong to any of these category. Okay, okay, okay. Okay. Now anyone. I think no one is belonging, right? I think that's why. Okay, okay, okay. Doesn't matter. Grew up with smartphones and social media and basic digital tools. इनके पास में क्या था? बेसिक डिजिटल टूल्स। ठीक है, ये बेसिक डिजिटल टूल्स की जनरेशन में बिलोंग, मतलब डिजिटली डिजिटल आपका पीरियड तब भी था। जेन अल्फा में भी डिजिटल है। बट डिफरेंस क्या था? तब एआई नहीं था। यहाँ पे क्या है? जेन अल्फा हैज बोर्न इन द वर्ल्ड ऑफ एआई,
वॉइस, ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है, जनरेशन बता रहे हैं, ओके, थैंक यू सो मच। ठीक। अच्छा, जेनजी क्या प्रेफर करते हैं? विजुअल, कोलैबोरेटिव एंड रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ठीक है, ये गेमिफाइड, रियल वर्ल्ड इनकी भी ये लर्निंग, बट इनकी क्या गेमिफाइड है, इंटरेक्टिव एंड हाइपर विजुअल्स, ये विजुअल्स पे नहीं ज्यादा रहे हैं, ठीक है, ये लेकिन किस पे रहे हैं, ये विजुअल्स पे रहे हैं, लेकिन जेन अल्फा। इनका क्या है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन है, ठीक है, प्रेफर फास्ट एंड एंगेजिंग कंटेंट, while shortest attention span needs rapid stimulation and frequent change in activity। तुरंत एक्टिविटी में तुरंत चेंज होना चाहिए, सेम टॉपिक है, सेम उस पे नहीं रहना है, ठीक है। कॉमनली यूजर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल क्लासरूम, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। जेंजी हमारे ड्रिवन बाय पर्पस एंड रियल वर्ल्ड रेलेवेंस, ठीक है, रेस्पॉन्स वेल टू रेगुलर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है। वहीं अगर मैं जेन अल्फा की बात करूं, engages with YouTube Kids, educational games like Roblox and AI powered learning app, driven by fun, play and rewards, okay, prefers instant feedback and immediate rewards, ठीक है। इनको कंस्ट्रक्टिव चाहिए, लेकिन इनको इमीडिएट चाहिए, इनको इंस्टेंट चाहिए, इनको कंस्ट्रक्टिव नहीं चाहिए, इनको एकदम इंस्टेंट, ऑन द स्पॉट, जिससे हम लोग रेफर करते हैं, इनको वो चाहिए। कम ऑन द नेक्स्ट। Okay. Core educational needs of Gen Z and Gen Alpha. Relevance to real life. Okay. Relevance to real life. Both generation need content that feels meaningful and applicable to their everyday lives। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, ठीक है, कि वो कहते हैं इस टॉपिक का क्या रियल वर्ड है, रियल वर्ड में इसका क्या काम है, ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैथमेटिक्स का क्या काम है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपसे यही बोलेंगे कि मैथमेटिक्स का क्या काम है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का तो खैर सबको दिखता है। जो आपके अदर टॉपिक्स हैं, जो आपके थ्योरम्स हैं, जैसे लेवल्स एक्सटेंशन है, आपका डिरिचलेट्स का इंटीग्रल है, क्यों काम है इनका, बच्चे यही पूछेंगे अगर आपसे बात करें, अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा यही सोचते हैं कि मीनिंगफुल उनके लिए, मतलब तुरंत वो सोचते हैं मीनिंगफुल हो जाए। कुछ चीजें हम लोग कहते हैं ना जिनका रिजल्ट आपको बाद में दिखता है। हम लोग एक हिंदी में एक चीज ये भी बोलते हैं बड़ा उससे, कि कुछ चोटें ऐसी होती हैं जिनका दर्द बाद में पता लगता है, लाइक दिस वी यूज्ड टू से, ठीक। Abstract concepts should be connected to real world situation to maintain interest and engagement, okay। Personalization of learning, okay, student expect, ठीक है, student used to expect learning experience that are tailored to their interest, pace, and style. Adaptive learning tools and choice-based activities cater to their need of autonomy. Okay. Interactive, engaging content. Traditional lectures are often ineffective. अच्छा, ट्रेडिशनल और होलिस्टिक में क्या डिफरेंस है? चलिए ये बताइए। ये तो बहुत कॉमन सा और आई थिंक वेरी इजी क्वेश्चन है। होलिस्टिक एंड ट्रेडिशनल में क्या डिफरेंस है, या फिर टीपीसी एंड एचपीसी में डिफरेंस बताइए। ट्रेडिशनल प्रोग्रेस कार्ड एंड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में डिफरेंस बताइए। अगर मुझसे जानना चाहें तो प्लीज डू लेट मी नो, मैं बताऊंगा, डोंट वरी। होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, ओके तृप्ति मैम, ओके ओके, इमोशनल, सोशल, एक्सेट्रा, ओके, यस एग्जैक्टली, तृप्ति मैम ने देखिए आंसर दिया है कि आपका होलिस्टिक ओवरऑल डेवलपमेंट, समवेयर आई थिंक मैम वी कैन आल्सो रेफर द 360 डिग्री डेवलपमेंट, राइट। 360 डिग्री अप्रोच वी में ऑल्सो रिफर। ट्रेडिशनल मार्क्स रिलेटेड, यस। उसमें आपका क्या होता है, ट्रेडिशनल में आपका ये होता है कि आपका ओनली एकेडमिक क्राइटेरिया मेंशन होता है, आपका उसमें कोई भी आपका कहते हैं होलिस्टिक क्राइटेरिया, वी में से सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, आर्ट्स, कल्चर, ड्रामा, किसी भी चीज का इंटरेस्ट या मीन्स अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक क्राइटेरिया नथिंग इज मेंशन इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड। ट्रेडिशनल में आपका केवल एकेडमिक रहता है। अगर मैं फीडबैक की बात करूं तो फीडबैक उसमें कैसा रहता है, उसमें केवल टीचर एंड पेरेंट्स का रहता है, बच्चे का फीडबैक इंक्लूडेड नहीं रहता है, किसमें, ट्रेडिशनल में। बट इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर अबाउट द ट्रेडिशनल सॉरी होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, सो दे ऑलवेज देयर इज अ फीडबैक ऑफ इंक्लूजन ऑफ व्हाट, पेरेंट्स, टीचर एंड स्टूडेंट ऑल्सो, वहां पे फीडबैक स्टूडेंट का भी मेंशन रहता है। एम गौतमी मैम ने देखिए बताया, यहाँ पे एग्री करा है सेंटेंस से, ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है, दोज हु हैव रेस्पोंडेड, ओके।
तो ये आपका हो जाता है। तो वही सेम चीज है, ठीक है। इनको क्या चाहिए है, ट्रेडिशनल लेक्चर्स आर ऑफन इनएफेक्टिव, इनको ये लिए इनएफेक्टिव हो जाते हैं। दीज लर्नर्स बेनिफिट फ्रॉम मल्टीमीडिया गेमिफाइड लेसन्स। मैंने बताया ना, आप लोग गेमिफिकेशन प्लीज अप्लाई करिए, ठीक है। आप स्कूल में उनके फोन्स तो नहीं मंगवा सकते, लैपटॉप नहीं मंगवा सकते, बट उनके लिए ट्राई करिए, क्विजेस प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक। स्मॉल क्विज प्रिपेयर कर लीजिए, ग्रुप एक्टिविटीज एंड हैंड्स ऑन टास्क दैट मेक लर्निंग एक्टिव एंड enjoyable. Frequent and instant feedback. Motivation is reinforced through quick responses. Exactly. आप उनको अगर रेस्पॉन्ड करेंगे तो उनका मोटिवेशन इंक्रीज होता है। इमीडिएट रिकॉग्निशन थ्रू क्विजेज, एप्स। मैंने भी बताया ना एप्स, ये देखिए एप्स, एक यहाँ पे वर्ड आया एप्स। और वर्बल प्रेस हेल्प मेंटेन मोमेंटम एंड फोकस। ओके। हैंड्स ऑन टास्क एग्जांपल मैंने अभी बताया, तृप्ति मैम, यस। हैंड्स ऑन टास्क आपका ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी देखिए डिस्कस भी करा था सेशन में कि वाटर साइकिल आपका मैम बाय द वे सब्जेक्ट क्या है? तृप्ति मैम व्हाट्स सब्जेक्ट, टीचिंग सब्जेक्ट? सर इंग्लिश। इंग्लिश, ठीक। आप उनको मैंने अभी बताया, जैसे ईवीएस का मैंने लिया था, क्या लिया था मैंने ईवीएस का? वाटर साइकिल लिया था, साइंस एंड ईवीएस का मैंने लिया, ठीक। इंग्लिश का है तो आप उनको सपोज से आप उनको अगर आर्टिकल देने जा रही है ना, तो आप एक उनको एक्टिविटी कंडक्ट करा सकती हैं, जिसको समवेयर वी में रिफर्स टू व्हाट, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू एक्टिविटी। Impromptu activity somewhere refers to that activity in which where the speaker is not well prepared about the respective topic or subject area. प्रिपेयर भी नहीं हो, आपने उन्हें अचानक से दे दिया कि ठीक है मैं एवरी स्टूडेंट को डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक प्रोवाइड कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और आप उसके ऊपर बोलिए बोलिए। बट उसमें किसका इंक्लूजन होना चाहिए? आपने वो टॉपिक बोल दिया बीच में आपने, जैसे समवेयर वी में रिफर्स टू व्हाट, आर्टिकल। और आर्टिकल में किसका, एंड का ज्यादा होना चाहिए। आपने उन्हें क्या करा, टास्क दे दिया। जैम, जैम समवेयर वी में से दैट डिफर, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यस। बट देयर इज अ पार्ट ऑफ इम्प्रॉम्प्टू, यस। एक्सटेम्पोर दे सकते हैं, एक्सटेम्पोर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। एक्सटेम्पोर में क्या होता है, ब्रीफ आइडिया होता है, ठीक है। इम्प्रॉम्प्टू में बिल्कुल आइडिया नहीं होता है टॉपिक का, बट एक्सटेम्पोर में क्या होता है, ब्रीफ आइडिया होता है। या मैन्यू स्क्रिप्ट ऑल्सो यू कैन प्रोवाइड, मीन्स वो स्क्रिप्ट होगी और वो देख देख के या फिर यू कैन वेल प्रिपेयर करके बोल सकते हैं। हैंड्स ऑन आप लोग दीजिए, या आर्टिकल दिया है तो आप उसका मॉडल कह दीजिए प्रिपेयर कर लाने को, जिसकी मर्जी जैसे हो, बस उन्हें क्या है, हमारा मोटो आर्टिकल आना चाहिए। आपने उनको होमवर्क दिया, असाइनमेंट दिया, आपने कहा आर्टिकल के ऊपर लिख के लाइएगा या 5 सेंटेंस लिख के लाइएगा, वो मत दीजिए। से सोचने दीजिए कि वो किसके साथ में कंफर्टेबल है। उनको दीजिए कि हाँ आर्टिकल के ऊपर जिसकी मर्जी हो, चाहे चार्ट पेपर पे बना के ले आए अच्छे से अट्रैक्टिव विद ग्राफिक्स के साथ में, डायग्राम के साथ में। किसी को आप उसकी उसको अलाउ करिए, उसको चॉइसेस दीजिए कि उसके पास में चॉइस हो, जिसकी मर्जी चार्ट बना के लाए, जिसकी मर्जी हो पूरा मॉडल एक तरीके से रोल प्ले एक्टिविटी प्रिपेयर कर लें। मान लीजिए 3 to 4 स्टूडेंट्स हैं, वो रोल प्ले एक्टिविटी भी प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक दिस। उनको कंपलसरी मत करिए होमवर्क, ठीक। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। ओके, फ्रीक्वेंट एंड इंस्टेंट फीडबैक मैंने अभी डिस्कस करा था, ठीक है। इमोशनल सेफ्टी एंड सपोर्ट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इज हाई अमंग दीज जनरेशंस। A positive inclusive classroom atmosphere where students feel safe to express themselves is essential for effective learning. फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए, मैंने पता ना, फ्लेक्सिबिलिटी इन द लर्निंग एनवायरनमेंट। आप उनको फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। टॉपिक मैं नहीं कह रहा कि आप उनको अपनी मर्जी सिलेक्ट करने दीजिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि उनको आप दीजिए, वहां पर उनको चॉइसेस दीजिए कि वो पर्टिकुलर, आप उनकी इससे क्या होगा, क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स उनकी इससे इनहेंस होंगी। कैसे होंगी? वो सोचेंगे कि मैं लिखने के अलावा किस तरीके से एक ही टॉपिक को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ क्लासरूम में, वेदर चाहे वो रोल प्ले हो, फ्लैश कार्ड हो, चाहे वो थ्योरी की फॉर्म में हो, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल वो प्रिपेयर करके लाए, वॉट एवर। फ्लिप्ड क्लासरूम टेक इंटीग्रेटेड लेसन दैट अलाउ फॉर मूवमेंट बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर्मेट्स। साइकोलॉजिकल टिप्स, अब आपकी टिप्स आती हैं। क्रिएट अ सेफ एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट, फोस्टर अ क्लासरूम कल्चर वेयर स्टूडेंट्स फील इमोशनली सिक्योर। उनको सिक्योर और रेस्पेक्ट दीजिए। मैंने बताया ना, रेस्पेक्ट कैसे देंगे, जब आप उनको अप्रिशिएट करेंगे, रिस्पॉन्स देंगे, देन दे विल फील respected and accepted. This encourages risk taking, participation, and open communication. Address anxiety and stress proactively. Understand the mental health challenges these generation face. Incorporate mindfulness activities, flexible deadlines when possible, and open conversations about well being. Promote autonomy and student voice.
अलाउ चॉइस इन असाइनमेंट, मैंने बताया ना, देखिए ये देखिए मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, मुझे बहुत मेरा फेवरेट मेथड है टीचिंग का, और चांस पर मैं आपको बताऊं मैंने इंप्लीमेंट भी करा, काफी ज्यादा इफेक्टिव रहा है। अलाउ चॉइस इन असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग मेथड्स, गिव स्टूडेंट कंट्रोल, बूस्ट मोटिवेशन एंड असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स एंड लर्निंग मेथड्स। Okay. Use social emotional learning SEL strategies. Integrate SEL means social emotional learning to help students recognize emotions, manage relationships, and make responsible decisions. Activities like journaling, check-ins, and group discussions support emotional growth. Build a strong teacher-student relationship. Show genuine interest in student lives and opinions. पॉजिटिव रिलेशनशिप इंप्रूव एंगेजमेंट, उनका एंगेजमेंट उनका इंप्रूव होगा, ट्रस्ट बनेगा आप पे, एंड क्लासरूम बिहेवियर। एनकरेज कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन, डिजाइन पीर लर्निंग अपॉर्चुनिटी दैट बिल्ड टीम वर्क, empathy and shared success. Collaboration suits their social interactive nature. Okay. प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर जेन जी एंड अल्फा, यूज मल्टीमीडिया एंड गेमिफिकेशन, मैं बार बार बोल रहा हूँ गेमिफिकेशन भी यूज करिए, फ्लिप क्लासरूम मेथड्स भी यूज करिए, promote project based and experiential learning, somewhat we also refers to what hands into what micro learning segments. Okay. क्लासरूम मैनेजमेंट फॉर डिजिटल नेटिव्स, यूज शॉर्ट फोकस्ड लेसन्स, उनको मैंने बताया ना उनको बहुत शॉर्ट टाइम ऑफ स्पेन होता है लर्निंग का, तो आप उनके लिए शॉर्ट फोकस्ड लेसन करिए। ब्रेक कंटेंट इनटू स्मॉल मैनेजेबल चंक्स, attention spans are short, so frequent changes in activity or format help maintain engagement. Incorporate movement and interactivity, allow physical movement through learning stations, role plays, or quick energizers. Kinesthetic engagement boosts focus and retention. Set clear objective. Set clear digital boundaries. Establish rules for device used to avoid distraction while still embracing tech. Teach digital etiquette and responsible uses. Blend screen time and hands-on activities. Alternate between tech-based tasks and tactile or group-based work. This keeps students grounded and avoid what? Screen fatigue. Maintain structure and flexibility, offers a predictable routine but allows flexible approach to tasks. Choice with structure gives student comfort and autonomy. कंफर्ट उसे जरूर फील कराइए, सेफ फील कराइए, सिक्योर फील कराइए, प्रोवाइड व्हाट? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। रोल ऑफ पेरेंट्स एंड स्कूल्स, इसमें इनका पेरेंट्स एंड स्कूल्स का क्या रोल रहता है? कोलैबोरेटिव सपोर्ट सिस्टम, both schools and parents must work together to support the emotional, academic and digital needs of Gen Z and Gen Alpha learners. Consistency between home and school environment strengthens learning outcome. Digital literacy and supervision, parents and schools should guide students in using technology responsibly. Responsible तो होना ही चाहिए आफ्टर ऑल। टीचिंग डिजिटल सिटीजनशिप, स्क्रीन टाइम बैलेंस, क्योंकि एक्चुअली हम देखिए बैलेंस नहीं करेंगे तो किसके क्या होगा, हार्मफुल होगा कहीं ना कहीं। एंड ऑनलाइन सेफ्टी इज एसेंशियल इन शेपिंग healthy habits, and encourage lifelong learning attitude, create an environment both at home and in school that fosters curiosity, creativity and love for learning beyond grades and exams. Emotional and mental health support देना चाहिए, ओके, देते हैं, ठीक है। पेरेंट्स एंड स्कूल मस्ट बी सेंसिटिव टू इमोशनल सिग्नल्स, ऑफर मेंटल रिसोर्स एंड प्रमोट ओपन कम्युनिकेशन, उनसे कम्युनिकेशन ओपन रखिए प्लीज। टू सपोर्ट स्टूडेंट वेलबींग, प्रोवाइड स्किल बेस्ड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, ओके, जिसको हम लोग होलिस्टिक भी रिफर करते हैं बार बार। Focus should not only be on academic content, mean traditional content, but also on 21st century skills like critical thinking, communication, problem solving, adaptability through projects and real world experiences. Continuous professional development for educators. Schools should regularly train teachers on the new technologies, generational traits, and student psychology to stay aligned with evolving educational needs. Challenges faced by the educators. Okay, challenges क्या आप लोग फेस करते हैं, या लोग क्या फेस करते हैं? ओके, चैलेंजेस आपके क्या होते हैं? मैनेजिंग शॉर्ट अटेंशन स्पैन, उनका जब शॉर्ट अटेंशन स्पैन है तो वो कैसे मैनेज करेंगे, आप खुद ही बताइए। ओके, कैसे करेंगे? सो
both Gen Z and Gen Alpha struggle with sustained focus, making it difficult for teachers to maintain attention during traditional lectures or long activities. Balancing technology use, while tech is essential, over dependence can lead to distractions and reduce deep learning. Educators must strike a balance between digital tools and meaningful engagement. Meeting diverse learning needs, students expect personalized learning path. Teachers face the challenge of addressing different paces, styles, and interests within one classroom. Addressing emotional and mental health, rising cases of anxiety, stress, emotional sensitivity require educator to be not just instructor but also empathetic listeners also. Mental health allies. Okay. Keeping up with rapid changes, education technology and student expectations evolve quickly. Teachers often struggle to stay updated. Okay. With what? टूल्स प्लेटफॉर्म जनरेशनल ट्रेंड्स। आप लोगों ने देखा होगा सीबीएसई ने या एनईपी ने क्यों ये पॉलिसी चलाई कि 50 आवर्स का सीपीडी क्यों मैंडेटरी करा, बताइए किस लिए करा? 50 आवर्स का सीपीडी, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ 50 आवर्स क्यों मैंडेटरी करा गया? क्यों करा गया? ताकि हम जेनजिन जेन अल्फा को समझ पाए, क्योंकि सब कुछ तो हम बच्चों के लिए ही तो करते हैं। हम ट्रेनिंग ले रहे हैं तो बच्चों के लिए देखने के लिए ले रहे हैं कि भैया हमें बच्चों का अगर एल्गोरिथम नहीं पता कैसे कौन बच्चा है तो कैसे आप हैंडल करोगे? आपको पता ही नहीं है बच्चे को कौन सी लर्निंग नीड चाहिए है और आप उससे क्या कहते हैं कर रहे हो, तो कैसे अरे काम होगा? पेरेंटल एक्सपेक्टेशन इन्वॉल्वमेंट, टीचर मस्ट बैलेंस एकेडमिक गोल्स विद द ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ पेरेंट्स हु डिमांड हाई परफॉर्मेंस एंड डिजिटल अकाउंटेबिलिटी। ओके, नाउ कम ऑन द सॉल्यूशंस। बिकॉज अब तक तो अरे हमने बात कर ली चैलेंज चैलेंज चैलेंज, कहते हैं ना क्वेश्चन 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 हो गए, बट हमें उनके सॉल्यूशन भी देखने हैं। जितनी ज्यादा देखिए कंटिन्यूस टीचर्स ट्रेनिंग होंगी, जैसे अभी आज आप लोग ज्वाइन हैं, आई एम सो ग्रेटफुल। ओके, तो एजुकेटर्स शुड रिसीव ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट इन educational technology, student psychology, and modern teaching strategies to effectively handle Gen Z and Gen Alpha learners। जिससे कि क्या हो सकता है, हम लोग लर्नर्स को और इजिली रीच आउट कर सकते हैं। ठीक, फोस्टर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच रखनी मीन्स मैंने उसको अभी बताया कि आप उनको चॉइसेस प्रोवाइड करिए, डिजाइन लेसन्स अराउंड स्टूडेंट इंटरेस्ट। ठीक, एनकरेज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोवाइड चॉइसेस टू प्रमोट ऑटोनॉमी एंड एंगेजमेंट, इंटीग्रेट बैलेंस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आप जब तक उन्हें ये चीज नहीं सिखाएंगे या बताएंगे या किसी भी तरीके से नहीं करवाएंगे कि बैलेंस यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज डिजिटल टूल्स पर्पसफुली, आपका जब कोई पर्पस डिफाइन हो देन आप यूज करिए डिजिटल टूल्स को, अदरवाइज अवॉइड करिए बिकॉज दे आर समवेयर आल्सो हार्मफुल फॉर योर आईज आल्सो, हेयर ईयर्स। Activities to create a hybrid learning environment that maintains focus and variety। फोकस कैसे आएगा? मैंने अभी बताया बहुत ज्यादा टेक से भी तो उनको इंटीग्रेशन भी चाहिए टेक्नोलॉजी का। प्रमोट मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग एंड इमोशनल वेलनेस, क्रिएट अ सपोर्टिव क्लासरूम एटमॉस्फेयर। सपोर्टिव वहां पे होना चाहिए। इंक्लूड माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, रेगुलर इमोशनल चेक-ins एंड एक्सेस टू काउंसलिंग रिसोर्सेस। स्ट्रेंथन होम स्कूल लीडरशिप। ओके, home school partnership, encourage active communication between teachers and parents, involve families in the learning process to reinforce values, routines and digital habits, emphasize life skills and values। हम लोग क्यों लाइफ स्किल्स की वर्कशॉप अटेंड करते हैं? समवेयर इसका कॉज यही है। टीच बियॉन्ड academics, embed collaboration I think very main part of teaching, empathy, digital citizenship and resilience in the curriculum to prepare students for real world challenges। ओके, टिप्स अगर मैं बात करूं तो आप ये भी कर सकते हो गेमिफिक। अगर मैं इस चीज को कंक्लूड करना चाहूँ इस स्लाइड को, तो मैं क्या बोलूंगा? गेमिफिकेशन को यूज करिए, माइक्रो ब्रेक्स को यूज करिए, चॉइस को अलाउ करिए असाइनमेंट्स में। ठीक है, प्रेज देयर एफर्ट्स नॉट जस्ट देयर रिजल्ट, स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नॉट आंसर्स। अच्छा, स्टार्ट विद द क्वेश्चन नॉट आंसर्स आप लोग जानते हैं कौन सी मेथड होता है? इंडक्टिव होता है, डिडक्टिव होता है? इंडक्टिव मेथड आपका होता है जिसमें आप क्वेश्चन से स्टार्ट करते हो ना कि आंसर से। जिसमें आप आंसर से स्टार्ट करते हो ना, वो आपका डिडक्टिव मेथड होता है। जैसे हम लोग आइस ब्रेकर से स्टार्ट करते तो समवेयर रिफर्स टू व्हाट, समवेयर इट रिफर्स टू द इंडक्टिव मेथड। ओके, सो लाइक दिस। ओके, आपके हिसाब से पॉल्यूशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है? आप इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल दिया है। ओके, तो समवेयर रिफर्स टू दिस। ओके, कंक्लूजन, you know
In teaching with Gen Z and Gen Alpha, educators must move beyond traditional methods and embrace the dynamic, tech integrated and student centered approach. अप्रोच आपको हमेशा से याद रखनी है, कैसी रखनी है स्टूडेंट्स के साथ में, आप कैसी रखनी है अप्रोच, स्टूडेंट सेंटर्ड रखनी है. These generation are growing up in a rapidly evolving world where learning is expected to be fast. Learning यहाँ पे आपसे कैसी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फास्ट, पर्सनलाइज, इमोशनली सपोर्टिव एंड एंगेजिंग. एंगेजिंग कैसे होगी, जब वो इमोशनली सपोर्टिव होगी. कैसे, उनको कितना इमोशन उसमें आना चाहिए. अगर सपोज कि आप हिंदी कोई स्टोरी समझा रहे हैं तो आप उसे इमोशन के साथ समझाइए ताकि वो तुरंत आपसे अटैच हो जाए आपके टॉपिक से. ठीक. अंडरस्टैंडिंग देयर साइकोलॉजिकल ट्रेट्स, learning preferences and emotional needs is the key to designing effective teaching strategies. Okay. मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंड, जब आप उनके साइकोलॉजिकल ट्रेट जान लेते हो, लर्निंग प्रेफरेंस, वो लर्निंग किस टाइप के प्रेफर कर रहे हैं, कैसी उनकी प्रेफरेंस है, इमोशनल नीड्स जब आप जान लेते हो तो क्या होता है, इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी को वेरी इजीली अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो. बट ये डिफर करती है टीचर टू टीचर, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, क्लासरूम टू क्लासरूम वेरी करती है. क्यों, टीचर का नेचर डिफरेंट है, स्टूडेंट का बिहेवियर डिफरेंट है. एंड आई थिंक जब whenever there is a difference we used to find in the behavior of what student and teacher, definitely क्लासरूम भी आपका डिफरेंट होता है. तो क्लासरूम को जानने से पहले हम किसका बिहेवियर जानते हैं, देन हम लोग एक्शंस लेते हैं. ठीक. इक्वली इंपॉर्टेंट इज द कोलैबोरेशन बिटवीन पेरेंट्स एंड स्कूल्स and teachers to create a balanced and supportive learning ecosystem by combining empathy, innovation and adaptability. Adopt क्या करना है यहाँ पे भाई, एडजस्टमेंट है, कोलैबोरेशन की तरफ रेफर कर रहा है. एजुकेटर्स कैन नॉट ओनली ओवरकम चैलेंजेस बट आल्सो अनलॉक द इमेंस पोटेंशियल ऑफ दीज फ्यूचर रेडी लर्नर्स. ओके. इन जनरेशंस को समझना आप लोग जानते हैं ना, मुश्किल नहीं. अगर हम पहले उनके शूज में चल के देखें, उनकी जगह पे अपने आप को रख के देखें, फील करके देखें, वो भी सीखना चाहते हैं. बस डिफरेंस कितना है, बस उनका तरीका थोड़ा अलग है. ठीक है. बस उनका तरीका थोड़ा अलग है, वेज उनके अलग है. ठीक है. सो डियर एजुकेटर्स, लेट्स नॉट जस्ट टीच देम सिलेबस, let's teach them that how to think and how to express and how to grow. ठीक. हमें केवल उन्हें चैप्टर लेसन नहीं पढ़ाना है, हमें उन्हें सिखाना है कैसे सोचें, कैसे बढ़ें आगे. हमें ये सिखाना है. हमारा मोटो एक्चुअली में, में हमारा मोटो क्या है, यही है. तो मैं इस चीज को कंक्लूड करते हुए बोलना चाहूंगा, गेमिफिकेशन यूज करिए. ठीक है. टीचिंग को माइक्रो ब्रेक्स में डिवाइड करिए, अपने लेसन्स को उनके उनको जो रिकॉग्निशन है प्रोवाइड करिए, अपनी तरफ से रेस्पॉन्स दीजिए. ठीक है. आप इंडक्टिव अप्रोच रखिए, होलिस्टिक आपकी अप्रोच होनी चाहिए. ठीक है. उनकी ट्राई करिए कि उनको प्रेज करिए, जहां पे भी वो करें तो कोई अच्छा वर्क करते हैं कुछ भी, उनको तुरंत प्रेज अप्लाई करिए उनके ऊपर ना, इस प्रोसेस को. ठीक है. तो ठीक है. ओके. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस वंडरफुल वर्कशॉप सेशन. Okay, which is has been organized by SNTTC. Okay, thank you so much, Ravi sir. Okay, for giving me a wonderful chance to conduct a session with all of you as well as, and I got a chance to meet from all of you. Thank you so much, everyone. Okay. And if someone has any view, then please do let me know. Okay. We should learn to understand children, Tripti ma'am. Yes, exactly. Exactly, Tripti ma'am. We should learn to understand the children. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, dear participants, I believe you all have had a wonderful session with the under the guidance of Mr. Raghavendra Dwivedi. Unfortunately, I'm unable to turn on my video, but I have one question to ask everyone. Where do you find such a sweet resource person who is constantly trying to become bilingual? At the same time, he is also trying to motivate you people to give answers, whether it is wrong, even that is fine. So I believe all the teachers should get such sort of appreciations, and we appreciate you for such sweetness, Mr. Raghavendra. Thank you so much for making today's session a wonderful and a successful one. No need to say thanks, sir. It's my pleasure. Yes. So, dear participants, in case you have any queries, please come forward so that the resource person can answer your queries. Okay. We request participants to come forward and give your
feedback so that that would be really helpful for the resource person to add on to his upcoming sessions as well. May I request Alka ma'am, can you kindly come up with your feedback, please? Okay. Sir, teachers has already sent a feedback in the chat section already there. Okay, fine. So I believe that's all for today. Lots and lots of appreciations to the resource person from the end of SNTTC for a wonderful session. We are looking forward for much more sessions like that in future, Raghavendra Sir, sir. can I add? Can I Yes, add? yes, ma'am. Yes. Yes, Nazneen ma'am, please.